Oh God. Today, Sanjay Nirupam's daughter is getting married. Yeah, Sangram had told me, and now I just saw the card. Sanjay ji, I wish you all the best. I wish your daughter all the best. I would love to come, but the thing is that I was in my own thing and I have not figured out my outfit till now for the event because I forgot about it. मुझे संग्राम ने पहले बोला था and then I was supposed to be staying in Delhi, so I thought I won't be coming. Now I have come to Bombay, but I forgot. I just saw the wedding card and संग्राम ने message किया मुझे and I was like oh my god, but अभी last moment पे outfit कैसे मैं arrange करूँगी? It's not going to be possible. Uh, yeah, like I said, I don't have a stylist out here in Bombay arranged yet. संग्राम का एक stylist है जिसने I think उसको कोई ट्रिप के लिए क्लोथ्स दिए थे. कौन सी ट्रिप के लिए? आई थिंक ही हैज़ अ स्टाइलिस्ट, जतिन जी. और बट द थिंग इज आई एम नॉट इन टच विद हिम, सो अगर now I call him, I don't know how he will arrange an outfit so last moment because already 12 बज चुके हैं and जाना आना लेके आना because या तो कोई वी फास्ट से वो कोऑर्डिनेट कर पाए. आई हैव नो आइडिया, बट आई जस्ट मैसेज संग्राम दैट यू शुड एटलीस्ट सेंड योर विशेस टू दैम. मेरी तरफ से तो विशेस है ही हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ तो विशेस है ही है. संजय जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट and congratulations to the couple. Okay, now coming back to something which is I want to discuss. देखिए, मुझे कुछ नहीं है आप लोगों के क्लोथिंग और अटायर से. आप लोगों को जो पहनना है पहनिए बिकॉज मेरे को जो पहनना है मैं पहनूंगी. And if you want, you can even make porn legal in India. What's the big deal? If somebody wants to strip, this strip, yeah. Why are we trying to lay moral compass on everybody? Because Kama Sutra was a part of Sanatan Dharam. Kama Sutra was not a part of some other dharam. Kama Sutra के ऊपर फिल्में बनी हैं. You can see the Kama Sutra, statues in mandir. So it's not something that our dharam is not associated with. ये दूसरी बात है कि जब मुगलों ने इन्वेड किया, यू नो व्हाट मुगल्स आर ना, मुगल जो आए इंडिया में और लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया. मुगल जो आए और अच्छी हिंदू ब्राइड्स और हिंदू लड़कियों को पेंगुइन बना दिया. दोज मुगल्स की वजह से द घूंघट एंड एवरीथिंग स्टार्टेड. बट नाउ इट्स बिकम लाइक अ बैड सोसाइटी evil practice that you see even in Rajasthan. So it's not as if it's gone, but you see in the villages of Rajasthan, you see in the villages of Haryana, so it's there. So I have no issues. अगर आपको penguin बन के घूमना है, it's your choice. Why should I get into your moral compass zone? But what I'm trying to say is that whether girls are wearing sports bra and workout clothes or whether they are clothed in some different attire, जो बिल्डिंग के रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए एक लिफ्ट होनी चाहिए. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज वी आर लिविंग इन द प्लेस, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, सो वी शुड हैव वन लिफ्ट असाइंड टू अस, द रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग. दैट्स इट. इसमें ओनर्स रेंट वाले ये डिमार्केशन नहीं होनी चाहिए. वन लिफ्ट शुड बी फॉर द रेजिडेंट्स, सिंपल. And another lift can be for the outsiders. Outsiders can be your vendors, your DMart wale, your workers who are construction workers because you're doing some kind of repair, I see. So your construction workers, your guests, you understand? Because every house has parties. Yeah baby, we all do party sometimes. It's okay ना, हम party नहीं करेंगे तो फिर हम थोड़ा संन्यास लेके बैठे हैं. So one lift should be for the guests. So guests and outsiders. So you should have two lifts. Demarcation. One should be for residents of the building and one should be for the outsiders, guests of the building. Guests of the building can be vendors, can be any human being. बट एक रेजिडेंस के लिए बिल्डिंग होनी चाहिए. बिकॉज अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर स्टार रह रहा है, या यू फॉरगॉट, यू रियली फॉरगॉट, यू फॉरगॉट आई एम अ स्टार. जस्ट थॉट आई विल रिमाइंड यू.
तो क्या होता है, लोग वेट करते हैं कि वो लिफ्ट में आए या वो एक ऐसी जगह पर उनको मिले जहाँ पर वो उनको कन्फ्रंट करे, तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज lot of people watch my videos and lot of times they have seen the content in my video and they want to now talk to me because of the content that they have seen in the video. So it becomes very very difficult for me if I bump into somebody like that in the lift and they are like, you know, overpowering the space. मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, यू नो, बिकॉज आई एम अ पब्लिक फिगर, कैमरा तो लगा हुआ है, बट अगर कोई आपको कान में कुछ बोल के जाएगा, जैसे हो ना रियलिटी शोज़ में, धीरे से साइड से प्रोवोक करके आपको चले जाए और आपको गुस्सा आ गया, मगर अगर आपने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया तो आपका हाथ उठ जाएगा, हाथ उठ जाएगा तो आप शो से बाहर हो जाओगे. वो रोड के ऊपर यही हुआ था ना. व्हाट हैड हैपेंड, समबडी हैड कॉल्ड मी, व्हाट, she called me a prostitute. Yeah, she did call me a prostitute, that woman on the roads. Yeah, she did that. Can you beat it? She actually had the balls to call me that. She called Sangram Singh's wife that. Can you beat it? So, आदमी ये सुनने के बाद क्या करेगा? जो भी किया ठीक किया. But फिर सामने क्या हुआ? Attack. You know, people get physical. So मैं इतना कहना चाहती हूँ कि there should be one lift for residents and one lift for outsiders. One lift is your service lift, जहाँ पे आप अपना heavy metal सामान लेके जाते हो, या you know बोरियाँ आलू प्याज की, या आपके डीमार्ट के ट्रॉलीज, या whatever you want to take. So this is just a pure suggestion. Forget star, not star. Every resident of this building deserves some privacy. And not interact with random people when they are going up and down the building, because बहुत difficult होता है यार. You are stuck with people and you cannot do anything because some of them have not taken bath, some of them are smelling, some of them are entering the lift just so that they can confront you with some kind of conversation, because उन्होंने आपके वीडियो देखे हैं और उनको वो वीडियो का कंटेंट देखने के बाद आपके साथ वो बातचीत करनी है. तो हमारा मूड नहीं है और हमारे पास प्राइवेट लिफ्ट नहीं है. वी लिविंग इन अ फ्लैट. संग्राम को बोला है यार बंगलो ले, मगर वो सुनता ही नहीं है. उसको अभी तक पर्ल हाइट्स का पता नहीं टेरेस पसंद है क्या. टेरेस के ऊपर अच्छा है, टेरेस ही तो है, उसको उसका टेरेस पसंद है. तो एनीवेज, I cannot be shifting till I don't have a place. So yeah, I just hope they can sort this out, because अजीब प्रकार के लोग आते हैं यार लिफ्ट के अंदर. एंड यहाँ पे कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती. थोड़ा यहाँ पे कोई मेटल स्क्रीनिंग होती है बिल्डिंग्स के अंदर. कोई मेटल स्क्रीनिंग नहीं होती जैसे कोई होटल्स में होती है. एनीबडी इज़ वॉकिंग इन, आप समझ रहे हो. देयर इज़ नो आइडेंटिटी चेक्स, देयर इज़ नो आधार कार्ड डिपॉजिट. तो एटलीस्ट कम से कम रेजिडेंट और आउटसाइडर्स का तो अलग अलग लिफ्ट रखो. रेजिडेंट्स को तो दो इम्पोर्टेंट जो मेंटेनेंस भर रहे हैं, थोड़ा तो उनको वो दो ना. क्योंकि अगर आप बोलोगे कि स्टाफ को अलग करो और रेजिडेंट्स को अलग करो तो लड़ाई हो जाएगी, है ना. वो रिजर्वेशन वाली लड़ाई हो जाएगी. तो वो रिजर्वेशन वाली लड़ाई मत करो. जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो एक होता है डॉक्टर्स की लिफ्ट, एक होता है डॉक्टर्स एंड नर्सेज की लिफ्ट, और एक होता है पेशेंट्स की लिफ्ट. हो गया ना डिमार्केशन. तो हम उसमें नहीं जाते ना, हम डॉक्टर की लिफ्ट में नहीं जाते, हम पेशेंट की लिफ्ट में जाते हैं और हम वेट करते हैं पेशेंट की लिफ्ट में. जब हम हॉस्पिटल में ये कर सकते हैं तो बिल्डिंग्स के अंदर भी एक रेजिडेंट लिफ्ट रखो, एक गेस्ट या आउटसाइडर लिफ्ट रखो, वेंडर्स की एक लिफ्ट रखो अगर आपको डिमार्केशन वैसे करना है तो. बिकॉज वेंडर्स कम विद ट्रॉलीज एंड एवरीथिंग, है ना. तो जो ट्रॉली वाली लिफ्ट है, हैवी स्टफ वाली लिफ्ट है, उसको सर्विस लिफ्ट में डालो. एंड आउटसाइडर्स के लिए एक लिफ्ट करो सीरियसली. बिकॉज हम भी थोड़ा स्पेस अपने घर के अंदर तो चाहते हैं ना, अपने बिल्डिंग के अंदर. As celebrities, I should not be subjected to random people. और अगर आपको नहीं पता मैं सेलिब्रिटी हूँ तो शायद as a common human being, as a human being, as a woman, I don't want to be subjected to random people because मैं वीडियो बनाती हूँ, है ना.
वीडियो तो देखे होंगे लोगों ने, आपने वीडियो तो मेरे देखे होंगे ना, नहीं देखे क्या? जब मैं वीडियोस में आड़े तिरछे लोगों को इम्पोर्टेंस देती थी ना, मतलब कैमरा उनके मुंह पे डाल के वीडियो बनाती थी, तो वो लोग कहते थे कि उनकी परमिशन नहीं ली, जबकि वो लोग पब्लिक स्पेस में होते थे, पब्लिक स्पेस में होते हैं और उनकी वैसे रिकॉर्डिंग हो रही होती है, बट मेरे कैमरा की वजह से उनकी स्पेस अफेक्ट होती है। तो जब ये मैंने रियलाइज़ किया ना, इसलिए मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी, बिकॉज ये लोग इतने झूठे लोग हैं ना, झूठ इतना बोलते हैं कि भैया नकली चार्जशीट फाइल करने के बाद आदमी कैसे इन पे विश्वास कर सकता है ना? तो जब लोगों का कोई ईमान धर्म ऐसे नहीं है तो फिर हमको रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ती है, बिकॉज आप लोग तो रिकॉर्डिंग कर ही रहे हो, कैमरास तो लगे हुए हैं लिफ्ट में, इधर उधर, रोड पे, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पे, सब जगह कैमरा लगे हुए हैं। अगर पायल के रिकॉर्डिंग से उनको प्रॉब्लम हो रही थी ना, वीडियो रिकॉर्डिंग से, मैंने ऑडियो चालू कर दी, कम से कम प्रूफ तो है कि तुम कितने बड़े झूठे हो, है ना? क्योंकि मेजॉरिटी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, मेजॉरिटी जहाँ भी गलत करेगी तो फिर वो मेजॉरिटी को थोड़ा हैंडल करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पे इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी, गुजरात में देयर इज हिंदू मेजॉरिटी, यू नो। सो जहाँ भी मेजॉरिटी गलत कर रही है, यहाँ पे भी मेजॉरिटी गलत कर रही है, यहाँ पे भी मेजॉरिटी गलत कर रही है। तो जब दोनों जगह मेजॉरिटी गलत कर रही है तो वो मेजॉरिटी को हैंडल कैसे करना, हैंडल करना आना चाहिए ना, ठीक है? वरना लोग जिनको कोई जानता भी नहीं है सडनली प्राइवेसी की बात करने लगते हैं, और प्राइवेसी की ज़रूरत है उनको ऐसे लिफ्ट में फंसा दिया जाता है। झूठे। ओके बाय।